Ladies and gentlemen, we now move to an exclusive conversation on responsible adventure tourism featuring our honorable chief guest, Shri Gajendra Singh Shekhawat, with Mr. Rahul Kanwal and Mr. Ajit Bajaj. This special interaction will focus on future of adventure tourism, responsible growth, global positioning, and India's immense potential in the sector. May I invite Mr. Rahul Kanwal to lead this conversation, please. Rahul, it's all yours now. Good morning, and it's absolutely fantastic being here. This conversation has been a long time in the making. My father ran an adventure cell in Devlali when he was in the artillery. We used to go every weekend trekking, paragliding, kayaking, rafting, whatever else. And I've seen over the decades, people like Ajit Bajaj, Vaibhav, and so many others take extremely good care of safety standards. And I've also seen people being very footloose and fancy in terms of ignoring safety. And therefore, how can the industry come together? It gives me great delight to be here when an effort is being made to bring everyone on a common platform. And the really amazing thing is that adventure tourism in India is very fortunate to have a minister like Gajendra Shekhawat, who's amongst the few mantris who's jumped out of a plane, he's been in fast waters, he knows the exhilaration of having fast rapids hit your face, and therefore and because his daughter is extremely passionate about adventure sports herself, therefore he's got a personal interest in ensuring that adventure tourism is safe in this country and that it grows and there are safety standards for all. So on that note, thank you very much, Minister, for being here. Thank you. Thanks for giving this opportunity. We're very delighted to have you here. I want to kick off by saying that in May, your government has come up with model standards that you want all states to practice and implement. But the fact is that tourism in India is a state subject. So outside of just coming up with a model framework, how do you think we can take adventure sports in India from where we are right now, which is largely unregulated, to having the kind of standards that we see in countries like New Zealand, Australia and elsewhere? देखिए राहुल जी, आपने ठीक कहा that भारत में टूरिज्म स्टेटलेस का सब्जेक्ट है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत के साथ में काम कर रहे हैं, अब वो जो दूरियां जितनी दिखाई देती थी उतनी दूरियां अब बची नहीं है. सारे राज्य जो हैं टूरिज्म की ताकत को समझने लगे. मेरा इस इंडस्ट्री के साथ में बहुत पुराना लंबा जुड़ाव है, लगभग 4 दशक का, टूरिज्म को लेकर के और टूरिज्म के नए मॉड्यूल्स को लेकर के. बिकॉज पूरी दुनिया में पर्यटन को देखने का, टूरिज्म को देखने का दृष्टि उसी तरह से बदली है जिस तरह से लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव बदला है. स्पेशली कोविड के बाद में पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस to experience based tourism rather than monumental tourism. हर आदमी को कोई ना कोई नया अनुभव चाहिए. एंड भारत में भी एडवेंचर टूरिज्म जो है वो एक नीश टूरिज्म सेगमेंट जैसा होता था, जैसा अजीत जी कह रहे थे, वहाँ से निकल करके अब एक्सपीरियंस फील्ड एडवेंचर इंडस्ट्री का रूप ले रहा है. और उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत है हमारा बढ़ता हुआ डोमेस्टिक टूरिज्म. पिछले 1 साल में 294 करोड़ ट्रैवल विजिट्स हिंदुस्तान में रजिस्टर हुई. और जब मैं ट्रैवल विजिट कहता हूँ कि मतलब घर से निकल करके कोई आदमी गया, एक रात कहीं बाहर रहा और लौट करके वापस आया, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज 1 विजिट. ऐसे में भारत में इस बदलते हुए दृष्टिकोण से, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में एडवेंचर टूरिज्म बहुत तेज गति के साथ में बढ़ रहा है. और आने वाले समय में जिस तरह से मैं राज्यों का अभी जो अजीत जी उल्लेख कर रहे थे, जब केवड़िया में हम बैठे थे, हमने इस फ्रेमवर्क को रिलीज़ किया, जिस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए एडवेंचर टूरिज्म ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान किया. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. सारे राज्यों के साथ में कंसल्ट किया, ऑपरेटर्स के साथ में कंसल्ट किया, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सबको जो है कंसल्ट किया, उनको स्टडी किया, एंड फाइनली एक फ्रेमवर्क इंडिया के लिए सजेस्टिव फ्रेमवर्क बनाया.
और जब हमने उसको लॉन्च किया तब सारे राज्यों के सेक्रेटरीज, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग बंगाल, ऑल द स्टेट्स, सबके सेक्रेटरीज वहाँ उपस्थित थे उनके सामने, एंड एवरीबडी हैव टेकन इट विद अ ग्रेट वार्मथ. सो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री में जितना स्कोप है, जिस गति के साथ में इंडस्ट्री बढ़ रही है, द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के को स्टैंडर्डाइज करना, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज करना, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, और उस पर काम शुरू हुआ है. हिंदुस्तान जितना डाइवर्स कंट्री है, जितनी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में है, जितनी तरह की डाइवर्सिटीज़ हमारे पास हैं, स्नो कैप माउंटेन से लेकर के और 7,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का कॉस्ट लाइन हमारे पास में है, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग से लेकर के और हिमालयन ट्रैक से लेकर के सारे माउंटेन ट्रैक्स हमारे पास में. तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जिस देश में कोल्ड और हॉट दोनों तरह के डेजर्ट हों, उस देश में इमेंस स्कोप है. थोड़ा सा जो है इसको सिस्टमेटाइज और रेगुलेट करने की ज़रूरत है. जैसा आपने मेंशन किया कि कनाडा ने जिस तरह से अपने यहाँ एडवेंचर सेफ्टी प्रोटोकॉल शुरू किए हैं, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से ऑडिट बेस्ड जो है रेगुलेशन उसके लिए शुरू किया है, या स्विट्ज़रलैंड में जैसे स्विट्ज़रलैंड स्विस मोबिलिटी कॉन्सेप्ट जिस तरह का है, हमको टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और हमारे यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़, इन तीनों को कंबाइन करके जिस फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी, वो दैट फ्रेमवर्क, दो इट इज़ एवर इवॉल्विंग वर्ड, कंटिन्यूस बदलता रहेगा एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, बट स्टिल एक बेस गाइडलाइन हमने सबके साथ में शेयर की, एंड दैट इज़ सो कॉम्प्रिहेंसिव. अगेन आई वुड लाइक टू थैंक अटवाई that it is so comprehensive that state need not to do anything. They just have to go adapt it, and the work is over, and then they have to implement it. But therein lies the challenge, Ajit, because all the states are not consistent. Some more willing to adapt these standards than the others. So tell us, which are the states that have been faster to move in terms of implementing the standard guidelines and frameworks, and where are the states that you think the Mantriji needs to push, the government needs to push to bring them up to speed, to get them to adopt and implement the framework? See, there is no uniformity, actually. Just a minute before you speak. There is no uniformity in India because being the state subject, every state as per their needs, they have started some sort of regulations and they have implemented them. But having provided with this framework, which is a universal framework for the country, and it's a comprehensive framework, rather I should say. It now, and it is just a week ago, less than a week ago. So I think that now, since that comprehensive document is available with the states, and with the warmth which they have taken it, I am sure that all the states, and Ajit ji was part of all those presentations which were made in that conference. Almost every state had come up with the idea, and with the idea which they have floated and they have depicted there, they had a component, apart from other components, one component of adventure tourism was inevitably there in each and every state's presentation. When we were discussing about creating 50 new iconic destinations of global standard, every state was coming up with an idea incorporated filled in with the adventure activity therein. Absolutely, sir. To answer your question, Rahul, I think we've been getting support from all stakeholders, starting at the highest level, from the Honorable Minister, our Ministry of Tourism. You see, all our state governments have realized that not just the economic benefits of adventure tourism in the far-flung regions of our country or employment generation in rural parts of our country, but also adventure tourism is the best way for us as a country to attain our sustainable development goals. And I'd like to mention those. There's Sustainable Development Goal number 8, 12, 13, and 15 in particular. So we are getting support from all stakeholders. This is work in progress. There are a lot of states that have taken the lead, but all states are coming on board. They are realizing the importance of this subsector. And as I mentioned, I think it's important for all of us to work as one team. It doesn't matter which state you are in or your political affiliation. We need to come together and ensure the growth of responsible adventure tourism in our country.
See, one more thing I would like to add here. Apart from the safety, the adventure tourism gives opportunity to the geographical locations or places where otherwise there are no opportunities. You go to beer billing, a big industry of is going on there. Paragliding people are doing there. Apart from that, what other industry you can imagine there? Nothing. So this is an activity, or this is an opportunity for the states or for the places which are very far flung, remote, and where no other activity, economic activity can happen, and this adventure tourism can change and their world and their lives in entirety. आपने बीर बिलिंग का एग्जाम्पल दिया, उसी की बात करते हैं, क्योंकि जैसे जब कोई बीर बिलिंग जाता है टूरिस्ट, वहाँ पे कई सारे ऑपरेटर्स हैं, कोई इंडिपेंडेंट है, कोई किसी कंपनी का हिस्सा है, और कस्टमर को ये नहीं पता होता कि इसमें से सर्टिफाइड कौन है, किसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन अभी हाल ही में स्टार्ट किया है. लोग अमूमन कॉस्ट देखते हैं कि ये 3,000 का दे रहा है, वो 5,000 का दे रहा है. जो 3,000 का दे रहा है वो लगता है कि भाई ये तो सस्ता है. कस्टमर की माइंडसेट ये रहती है. इसको आप कैसे एड्रेस और अटैक कर सकते हैं मिनिस्टर, कि लोग सबसे चीप ऑप्शन में ना जाए, जो सबसे चीप ऑप्शन है वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. देखिए, इसीलिए जो है इस फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क वहाँ पर सभी जगह पे, नॉट ओनली बीर बिलिंग, सब जगह हर एक एक्टिविटी के लिए बना करके उसको लागू करें, और इस तरह की जो है व्यवस्था खड़ी करें कि सब लोग एट पार हों और बिना ऑडिट, सेफ्टी रेगुलेशन और एक्सपीरियंस, डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के कोई इस तरह से ऑपरेट भी ना कर सके. अजीत जी जब बात कर रहे थे ओपनिंग रिमार्क्स में, इन्होंने कहा कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स इन इंडिया 35% ही केवल ऐसे हैं जो उनके पास में लाइसेंस है या जिनके पास में रजिस्ट्रेशन है. सो एक स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोटोकॉल विद ऑपरेशन गाइडलाइन बनेगा तो मुझे लगता है ये जो चुनौती हमारे पास है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक एक्सीडेंट कहीं होता है, वो हो सकता है एक्सपीरियंस की कमी के कारण से भी हो सकता है, टेक्निकल फेलियर के कारण भी हो सकता है, किसी गैजेट के कारण भी हो सकता है, कुछ भी कारण से अगर एक एक्सीडेंट कहीं होता है, वो एक एक्सीडेंट हमको जो है केवल एक एक्सीडेंट, एक लाइफ, एक इंजरी इतना ही कॉस्ट नहीं करता. कंप्लीट ट्रस्ट जो है उसके कारण से शेकन अप होता है. इसलिए इसको रेगुलेट करने की, इसको इन अप्रोप्रिएट मैनर इसको जो है रन थ्रू करने की आवश्यकता है. How do you think this should be addressed? Because you deal with this, for example, when someone's rafting down with any of your companies down the river above Rishikesh, it costs much more. There's so many operators already by the river who will do the same thing at a much cheaper price, and they'll stop wherever you want them to stop and do much more masti than you would allow. And therefore, naturally, most customers might feel that, hey, why not? ये बहुत ज़्यादा नियम कानून बता रहे हैं, वहाँ ज़्यादा मजा आएगा. You're absolutely right, Rahul. So we have to work at all levels. As adventure tour operators, we need to adopt global best practices. We need to learn from each other and ensure we are doing the right thing. And to that effect, the Adventure Tour Operators Association of India, over the last few years, we have come up with safety guidelines covering 29 verticals of adventure tourism. We are running courses in wilderness, first aid, CPR, and responsible adventure tourism for our guides. Yes, and I'd like to mention we are doing this in partnership with our Ministry of Tourism, Government of India, and many state governments have pitched in as well. The second aspect, of course, is regulation. It is important. There is risk involved, and that is where, as a subsector of tourism, we are a little different. Because there is risk involved, there is need to regulate the sector. We have to ensure that any company that is getting into adventure tourism, they are using the right equipment, certified to international levels of safety. Their guides are very well trained, not only in technical aspects, but also in communication skills, in first aid, CPR, and rescue, and so on. And the third aspect also is that we must create awareness amongst our adventure tourists that when competition is only on price, the first thing that takes a hit, that's the casualty, is safety. So licensed operators
operating at international standards of safety and also consumer awareness to only go with certified, recognized operators. सी प्रॉपरली रेगुलेटेड जिस दिन जब ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो जाएगा and the license or registration will be compulsory for all the operators, then all these safety protocols on which it is compromised, कोई cost पे compromise कर रहा है, कोई उसके safety protocols पे compromise कर रहा है, कोई जैसा आपने कहा ज़्यादा मस्ती को allow कर रहा है, ऐसे लोगों को चक करके और उनके ऊपर जिस दिन लाइसेंस को बंद करेंगे, उनको पेनलाइज करेंगे, उस दिन ये अपने आप चीज़ें ठीक से रेगुलेट होने लग जाएंगे. और वो अब क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है, पहले एक नीश सेगमेंट था, छोटे से तौर पे होता था, लेकिन अब हिंदुस्तान की लगभग हर रिवर पे जहाँ पॉसिबिलिटी है, हम लोग केवड़िया में थे, उन्होंने वहाँ आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया है, नर्मदा में जो है एक्सपीरियंस, राफ्टिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया है, सुबह सुबह कोई भी जाके कर सकता है. तो ये जो जब जैसे ये एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे अब इसमें हमको ज़्यादा प्रॉपर रेगुलेशन की आवश्यकता और भी बढ़ेगी. आप कह रहे हैं कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर मैं आपको जैसे पैडी का एग्जांपल देना चाहता हूँ. ये सज्जन यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं. पैडी में अगर आपको डाइव मास्टर बनना है तो आपका बाकायदा इम्तिहान होता है, आप एग्ज़ाम पास करते हो तभी आप किसी दूसरे को ट्रेन कर सकते हो. आप जब डाइविंग के लिए जाते हो आप देखते हो कि जिसके साथ आप डाइव कर रहे हो उसकी क्या सर्टिफिकेशन है, और जो सेंटर है उसकी भी रेगुलरली पैडी सर्टिफाई करता रहता है. जब तक कुछ इस तरह से नहीं होगा तब तक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए छोड़ दोगे, कोई अच्छे से चला रहा है रेगुलेशन, कोई नहीं चला रहा. हाउ डू वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम कि आपके पास एक बाकायदा पैडी टाइप की सर्टिफिकेशन हो जिसमें चेक भी हो कि आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कितने क्वालिफाइड है. इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं मिनिस्टर? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अभी हमने वी हैव जस्ट बिगन विद, अभी तो 7 दिन हुए हैं फ्रेमवर्क को इशू किए हुए. आपने पैडी का एग्जांपल दिया, हमारे यहाँ भी जहाँ डीप सी डाइविंग पे, स्नॉर्कलिंग पे जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक डीप सी डाइवर बनने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट होने के बाद ही आप दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो. दैट सिमिलर सिचुएशन विल बी available in all the states and all the adventure activities relating to adventure sports. It will take a bit time, but with the passing the time and having this comprehensive framework in place, I think that in a year or two there will be activities, and then once safety protocols are going to be adapted by any of the state, और वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख करके दूसरे स्टेट्स भी इस पर काम करेंगे. और भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जो है, इसको सभी लोग जो अपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ को इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, जिस भी स्टेट में जिस भी तरह की एक्टिविटी हो रही है, हमने ये तय किया है कि जो इन प्रोटोकॉल्स को, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को, सेफ्टी फ्रेमवर्क पे गाइडलाइन बना करके ठीक से उसके ऊपर काम करेगा, सेफ्टी के साथ में सस्टेनेबिलिटी पर भी ठीक से काम करेगा. तो भारत सरकार का जो भी इन डिफरेंट स्कीम्स, वट एवर सपोर्ट वी एक्सटेंड एंड हैंड होल्डिंग वी गिव प्रोवाइड टू द स्टेट्स, उस सब में उसको एक कंसिडरेशन का बेंचमार्क मानेंगे कि आप ये करोगे तो ही हम आपको सपोर्ट करेंगे. सो ऑल द न्यू स्कीम्स और न्यू एवेन्यूज व्हाट स्टेट्स विश टू क्रिएट, उसमें हमको अपनी और भारत सरकार से उस पर सपोर्ट चाहिए. तो उसके लिए पहले इनको ठीक से रेगुलेट करके अडेप्ट करना पड़ेगा. दिस विल बी carrot and stick, both approach will be there. Mr. Bajaj, can regulation be left to the states? Do you think there's a need for a national body like PADI to certify in different disciplines the companies that are involved in this and also the guides who are helping people go out into the water or come down from the skies? Absolutely agree with you. So we are working with the Bureau of Indian Standards to have standards for adventure tourism, and we've recently also adopted ISO 21101, which is the adventure tourism safety management system standard. So we are working with all stakeholders on this aspect. But to answer your question more specifically, to some extent, perhaps an interministerial group chaired by the Honorable Minister to look at a national framework for safety management in our country, perhaps that is a need of the hour. And I'd also like to suggest one other aspect, that yes, whenever there's an accident, it's highlighted. So through you, Rahul, we also want to say that by and large, there's some very good operators in our country.
They are absolutely world class, as you've seen yourself, and there is need to regulate the system to ensure we all come onto a common platform. But the kind of benefit we are getting as a country, we are a country of youth from adventure tourism. I think that far outweighs any negative, but let's work together, and definitely there is need for synergy across all as a nation. No, but this. See, let me intervene here, Rahul. Ideally, it is very good that when we say that there should be a national framework, but ultimately implementation of those framework will always lie on the shoulders of the states. And भारत में जिस तरह का federal structure है, the entire law and order is being dealt by the state governments. हमने ऐसा तो नहीं कहा कि देश ने एक प्रोटोकॉल बना दिया, देश ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, एक आईपीसी बना दिया, देश ने एक भारत न्याय संहिता बना दिया, and states are working on it. So we suggested, we have given a national framework to them. Now they will adapt it and they will work on it. And then time will come that this industry will further grow, and if it is required, then we'll have to go to the parliament and ask that to enact a national framework for safety protocols. मैं अब चर्चा करना चाहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि जैसे हम स्कीइंग लेते हैं, कुछ तस्वीरें स्कीइंग की पीछे चल भी रही हैं. स्कीइंग में क्या होता है गुलमर्ग जैसी जगह पे कि जैसे जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो फटाफट स्की लिफ्ट्स बनवा लेते हैं, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं. उनकी सरकार जाती है, नई सरकार आती है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो खंबे उखाड़ के पहलगाम ले जाते हैं. और ये काफ़ी अपसर्ड टाइप की सिचुएशन है कि जहाँ पे स्कीइंग हो भी नहीं सकती वहाँ पे खंबे लगे हुए हैं. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि अब एडवेंचर स्पोर्ट्स कुछ शौकीनों के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं, अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिनका ट्रेडिशन, जैसे कोई आर्मी फैमिली से हो, उसका एक समझ में आता है कि चलो ये बचपन में ही सीखते हुआ. अब तो हर तरह का आदमी आ रहा है वहाँ पे, उससे फिर भीड़ हो रही है. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. सेंट्रल गवर्नमेंट इस इशू को कैसे एड्रेस कर रही है? देखिए, हमने केवल यही नहीं, टूरिज़्म के हमारे नए आइकॉनिक ग्लोबल स्टैंडर्ड के डेस्टिनेशंस बने, 50 डेस्टिनेशन बने, बिकॉज डिकंजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ द बिगेस्ट नीड ऑफ द आवर. ऐसे नए डेस्टिनेशंस बने और उनको हम अब जो भी कुछ बनाए उनको एकदम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाए. इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कंटिन्यूस मार्गदर्शन भी किया है, हमने स्टेट्स के साथ में इंटरेक्शन भी किया है. और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हर स्टेट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैव डिसाइड कि हर स्टेट अपने यहाँ एटलीस्ट एक डेस्टिनेशन इस तरह का बनाए. मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जो भी लेकर के आए थे प्रोजेक्ट प्रपोजल, उसके एक कंपोनेंट एडवेंचर टूरिज़्म जरूर था. इसलिए ये निश्चित रूप से एक्सपेंड भी होगा, इसकी महत्ता भी बढ़ेगी. और उस पर जब नीड बढ़ती है, तो जब डिमांड बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर आता है. भारत सरकार डिफरेंट स्कीम्स के तहत इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्टेट्स को सपोर्ट एक्सटेंड करती है. टूरिज़्म की जो है इकोनॉमिक पावर, और टूरिज़्म की इकोनॉमी हमेशा ही डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है, बिकॉज जो है नीचे एक टैक्सी ड्राइवर से लेके, गाइड से लेकर के, द क्राफ्ट शॉप से लेके, होटल से लेके, होटल से काम करने वाले से, ग्रॉसरी से, एवरीबडी इट इज़ डिवाइडेड. सो टूरिज़्म की इकोनॉमी की, इस डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की ताकत को समझते हुए हर स्टेट ने इसको गंभीरता से लेना शुरू किया. जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे इस इंडस्ट्री के साथ में लगभग 4 दशक का अनुभव है. पिछले 4 दशक में मैंने ओवरऑल टूरिज़्म के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केवल एडवेंचर की बात नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल टूरिज़्म को लेकर के जितना एंथुजियाज्म अभी स्टेट्स में है वैसा कभी नहीं था. आज हमारा जीडीपी में टोटल टूरिज़्म का कंट्रीब्यूशन जो है ऑलमोस्ट 6% है, जबकि ग्लोबली इट इज़ 10% प्लस. और प्राइम मिनिस्टर का हमको इंस्ट्रक्शन है कि आने वाले 2047 तक हम 10% लेकर के जाएँ. जब 10% पहुंचता है तो नेचुरली एडवेंचर टूरिज़्म विल बी द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ दैट. और 10% जब पहुंचेगा तब हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ा सेक्टर होंगे. सो ऑल ईच एंड एवरी स्टेट्स दे अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड द पावर विद इन, सबको दिखाई दे रहा है. इसलिए एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इनटू इट and everybody is willing to invest into it. Okay, so we're running out of time. I was told to wrap up on time so the minister can leave, but I'm going to give an opportunity to somebody who wants to ask a question from the audience. If there's anyone who wants to ask a question, just put your hand up.
We'll try and, can we have the mic sent here to this gentleman over here, please? आपको जितना भी कराना है अभी करा लो इन्हीं मिनिस्टर के रहते रहते. There's a good chance of getting it done, I think. We have all the support and encouragement, and So nice to hear your words and see the progress. I just had one thought from, and it's on minds of everybody here, is when will the Nanda Devi Sanctuary be opened? Because that will then create a major, like you have talked about domestic tourism, but if you look at international tourism, it'll plant us like on par with the best in the world. So I think that is long, long overdue. And can you share your thoughts on when that will happen? बहुत जल्दी हो जाएगा, बस इतना कह सकता हूँ. Date I cannot say predict anything. Okay. Yeah, please, gentlemen behind. No, but for the cameras we do need a mic. So let's just have the mic. A little critical question. I'm Piyush Khandelwala. I'm from Rocksport. We do a lot of summer camps. A lot of students from foreign countries come to our adventure programs. And looking at the geopolitical scenario now, there's a big hit on Indian tourism. Not a lot of foreigners are coming to India. And we'll definitely, as a organization, as a group, we need your support from central ये government. war कैसे बंद कराएं वो तो मैं इनके बताता हूँ. नहीं वैसे भी Inbound tourist भी कम हो गया है. Before the war also it was देखिए, मैं dropping. आपको बताता हूँ. टूरिज्म ऐसा इंडस्ट्री है, दुनिया में कोई भी तरह का टर्बुलेंस होगा, कोई भी जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस आएगा, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले कैजुअलिटी टूरिज्म की होगी और सबसे लास्ट रिकवरी भी टूरिज्म की होगी. हमने पैंडेमिक के समय में देखा था. वो केवल हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है. और पूरी दुनिया के टूरिज्म पे इसको हिट करेगी, इम्पैक्ट भी होगी. चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, चाहे वो कोई मैन मेड पैंडेमिक आ जाए, और अदरवाइज कोई वार लाइक सिचुएशन हो जाए जैसा अभी चल रहा है. बट इंडिया इज़ द ब्लेस्ड कंट्री. जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं वापस आ जाता हूँ. हमारे देश में टोटल जो टूरिस्ट आते हैं हिंदुस्तान में वो 2 करोड़ के लगभग है. दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जहाँ जाते हैं वो देश में वो संख्या वहाँ पे लगभग 10-12 करोड़ के आसपास है. लेकिन भारत यूएस और भारत 2 और चाइना 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में डोमेस्टिक टूरिज्म की इतनी बड़ी ताकत है. मैंने जैसा कहा था 294 करोड़ जो है ट्रैवल विजिट्स हिंदुस्तान में हुई है. उसके अगेंस्ट में देखूं तो 1% हमारा इनबाउंड है. इसलिए इंडिया इज़ द ब्लेस्ड कंट्री विच इज़ जो सबसे कम इम्पैक्ट होने वाली है इस जो है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रही है उसके कारण से. थोड़ा बहुत असर सब पे पड़ेगा, लेकिन हमारी डोमेस्टिक ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो हो रही है, हमारे यहाँ लोग जिस तरह से लोगों की पर कैपिटा इनकम और डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ रही है, उसके चलते हुए हमारे यहाँ जो है टूरिज़्म मिनिमम इम्पैक्ट जिन देशों में होगा उसमें से एक होगा. और साथ साथ में जिस तरह से हमारे यूथ का, जैसे मैंने कहा कि टू एक्सपीरियंस द लाइफ एंड टू एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जो है, उसके लिए जिस तरह से एंथुजियाज्म और ज़ील बढ़ रही है, ये आने वाले समय में हमारे इस टूरिज़्म सेक्टर को बहुत बड़ा बाउंस उससे मिलेगा. सर फॉरेन टूरिस्ट का तो पता नहीं, लेकिन कल रात को मैं अजीत जी से पूछ रहा था कि मैं आ तो जाऊंगा, ये बताना कि मेरे को अपने बेटे को किसी अच्छे समर एडवेंचर कैंप में भेजना है, कहाँ भेजूँ, तो मैं आपसे ज़रूर डिटेल्स ले लूँगा. Can we have the mic sent here? My name is Saikat Bishwas. I am from Andaman Nicobar Islands, sir. I am the co-chair for Atoy Eastern Region chapter, sir. सर अंडमान निकोबार में स्कूबा डाइविंग का बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है सर. अभी रिकॉर्ड बनाया आप लोगों जी ने? सर, हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सर. थैंक यू सो बनाए मच फॉर द सपोर्ट सर. सर हम चाह रहे हैं सर अंडमान निकोबार में जो टूरिज्म है मेनली पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील तक ही सीमित है, 3 द्वीपों में. सर मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म से कि हम और ज़्यादा द्वीपों को टूरिज्म के लिए खोलें. वर्किंग ऑन दैट. राइट, थैंक यू सो मच सर. वर्किंग नॉट इवन अंडमान निकोबार में, बाकी सब जगह पे भी हम काम कर रहे हैं. सर स्पेशली नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में बहुत प्रॉस्पेक्ट वी है. आर वर्किंग ऑन, वी आर कंसिडरिंग 1 आइलैंड 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इस तरह से उसको स्पेशलाइज्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने पर वी आर प्लानिंग ऑन दैट. थैंक यू सो मच सर. एक चीज़ पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब आपसे. आपने 50 डेस्टिनेशंस की बात की एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू बिल्डिंग दैट. इज देयर एनी थॉट, प्लान और एक्शन ऑन कंट्रोलिंग द कैरिंग कैपेसिटी? बिकॉज दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड से, banes of the tourism industry. It is, carrying capacity is a big concern, as I have mentioned a bit, that decongestion is the need of the hour.
सो हमारे देश में जिस तरह से टूरिज़्म बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रेशर हमारे डेस्टिनेशंस पे बढ़ रहा है, इसी को लेकर के प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न था कि हम नए जो है एवेन्यूज़ भी बनाएं और नए डेस्टिनेशंस भी डेवलप करें। जो डेस्टिनेशन एग्जिस्टिंग हैं उनको डीकंजेशन के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर प्लान करके ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करें। बट एज आई मेंशन दैट स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को पहले प्लान करना है, उनको डीपीआर बनाना है। बट वट एवर प्रोजेक्ट्स वी आर गोइंग टू टेक, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो चैलेंज बेस पर होंगे। जो स्टेट बेस्ट प्रोजेक्ट्स लेकर के आएगा, दे विल बी हैविंग better opportunities and more opportunities to do it. But this is an important point, Minister, and you should be very mindful of having a limit on how many rafts can go down a river on a day, or how many people can jump off a hill if they have to. Otherwise, it just goes I crazy. think that is very well the part of that framework which ATOI with the ministry have developed. उसमें इन सब चीज़ों को incorporate किया है। सर गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ प्रतीक। मैं सर एक एडवेंचर सेफ्टी कंपनी रन करता हूँ एंड वी हैव डन मोर देन 5000 रेस्क्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे वो हमारी डिफेंस फोर्सेज हों, सबको हम ही प्रोटेक्ट करते हैं सर जब वो एवरेस्ट पे या कहीं जाते हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था और एक रिक्वेस्ट थी दैट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है रेस्क्यू का हर जगह पे, एंड अगर रेस्क्यू सिस्टम होते हैं तो फॉरेन टूरिस्ट भी यही बोलते हैं कि हम आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। द मेन थिंग इज़ अबाउट रेस्क्यू। सो ऑफ कोर्स अगर हमारे गाइडलाइंस होंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होंगे तो उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, बट अगर होगी और वो पड़ती है तो सर वी वुड लव टू इन्वेस्ट इन आवर ओन कंट्री। अभी हमारे पास 30% ऑफ क्लाइंबर्स ऑन एवरेस्ट आर सिक्योर्ड बाय अस, तो हम रेस्क्यू हर रोज़, आज भी 2 मेरे रेस्क्यू किए हैं सर। चलो दैट्स ग्रेट। मुझे लगता है कि ये तो समय की आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है, और आप वॉलंटियर कर रहे हैं, आप लोग करते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इस पे जो भी कुछ सरकार का सहयोग चाहिए, सरकार को जहां आवश्यकता है, वील एक्सटेंड ऑल द सपोर्ट, दिस आई कैन एश्योर। थैंक यू So, सर। Pratik, to answer your question, with the Ministry of Tourism, Government of India, we now have a national strategy for adventure tourism. There is also a national board for adventure tourism. We've had 8 meetings of the board, and having a national rescue system for adventure tourism is a work in progress. We are talking about it, and the Honorable Minister has very kindly agreed to chair the next meeting of the board. Right. And this is an important aspect which we are working on together. No, thank you, sir. And sir, helicopters are one of the biggest things. Rescue teams we require. So we would love to invest in states where we can invest in helicopters, rescue helicopters also. थैंक यू। Okay, we'll make this the last question. Yes. थैंक यू राहुल। नमस्कार मंत्री जी, मेरा नाम विनायक है। आई रन एडवेंचर ट्रैवल कंपनी। इनबाउंड की बात हुई पहले, और माननीय प्रधानमंत्री को अगर मैं कोट करूं, जिन्होंने कहा बाहर कम जाइए, डॉलर बचाइए, सोना कम खरीदिए, डॉलर बचाइए, तो इनबाउंड अगर टूरिज़्म की बात करें, चाहे हम डोमेस्टिक टूरिज़्म की बात करें, पिलग्रिम टूरिज़्म की बात करें, आई नो वी हैव ह्यूज पोटेंशियल इन डोमेस्टिक टूरिज़्म, और कोविड में डोमेस्टिक टूरिज़्म ने ही भारतीय टूर ऑपरेटर्स हमने जाने के लिए मना किया, आने के लिए मैं मना उसी नहीं के लिए कह रहा हूँ सर कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का मेन रोल था इनबाउंड टूरिज्म को प्रमोट करना। थ्रू यू आई वुड रिक्वेस्ट यू सर कि इनबाउंड टूरिज्म को एक नया जान दी जाए। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म काफ़ी साल पहले एक साल भर की लिस्ट निकालती थी किन किन ट्रैवल फेयर्स में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एग्जिबिट करेंगे। विद दैट अभी भी निकाल दिया इस साल का, थोड़ा उसको एक्सपेंड करना जी, है। और टूर ऑपरेटर्स विद दैट वर एबल टू प्लान एडवांस, एंड चोली दामन का साथ है टूर ऑपरेटर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। इट विल हेल्प अस एंड वी वुड नीड योर सपोर्ट टू रीफोकस ऑन इनबाउंड टूरिज्म। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू। बीच का पीरियड थोड़ा सा ग्रे पीरियड हुआ था फॉर वेरियस रीजंस जिनको यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिछले साल से हमने वापस शुरू कर दिया, और इस साल वी आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द बिग टूरिस्ट ट्रैवल फेयर्स विच आर हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब 10-12 जो होते हैं सब में वी आर गोइंग देयर। Okay. चलो Ma'am wants वापस to ask शुरू the किया है, last थोड़ा question. बढ़ Go on. जाएगा। हेलो, मेरा एक छोटा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक हेल्प चाहिए आप लोगों से। आई हैव बीन ऑपरेटिंग एज एडवेंचर टूर ऑपरेटर फॉर पास्ट 30 years, Oh. and I have been a climber myself. Passion has been my profession, and I am a inbound tour operator. मगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है वो है सैटेलाइट फ़ोन की। जब क्लाइंबर
को ज़रूरत है कम्युनिकेट करने की, वो प्रॉब्लम में है और हम कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो हमें सिक्योरिटी इस तरह की Rescue की क्या कैसे मिलेगा? ज़रूरत है, कब यूज़ करेंगे? सो इफ़ यू कुड हेल्प, वो इसीलिए इनबाउंड टूरिज़्म में बहुत गिरावट आ गई है, बहुत आ गई है, और उठने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। चलिए, आपका सुझाव अच्छा है. I can take it forward to the concerning ministry. Yeah. Because there's an interplay of security there as well, right? Allowing satellite phones, then you've got a whole situation. And all the mountains where people go for climbing, they are all on the borders, and so uske दूसरे aspects को भी we have to consider, because I think national security is the first thing which we have to take on priority. So time खत्म हो गया, लेकिन आप इतने excited हैं, चलो उनको एक मौका देते खत्म करने से पहले. वो तो एकदम आगे ही आ गए कि अगर आप नहीं पूछते दोगे तो वो तो स्टेज पे ही आ जाएंगे कि आप छोड़ो मत मुझे. Take this up as part of our next national board meeting as well. जी सर, मैं रन ऑफ कच्छ गुजरात से हूँ. हमारे वहाँ एक कच्छी में कहावत है, रण डूंगर ने दरियो जुदा वाणी ने वेश तेज वतनता वारी बनाएड़ो कच्छड़ो मुझे उद्देश्य. यानी कि हमारा कच्छ जो है वो सर ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रण डेजर्ट है, डूंगर माउंटेन्स है और दरिया यानी सी है, यानी तीनों है. ऐसा कोई ही इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे माउंटेन, सी और डेजर्ट सब कुछ है. तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2011 में वहाँ पे अमिताभ बच्चन को लेके आए और वहाँ पे एड शूटिंग कराई थी. वो पूरी एड में कहूँगा तो शायद ज़्यादा टाइम निकल जाएगा. आप सवाल पूछो. जो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं दिखा. तो सर वहाँ उसके बाद काफ़ी सारे टूरिस्ट आने लगे, तो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे टूरिस्ट आए 2011 के बाद. उसको काफ़ी साल निकल गए, तो अब जो है वो फॉरेनर्स काफ़ी कम होने लगे. तो उसके लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा कुछ ट्राई करें, ऐसा कुछ भी करे. तो उसके लिए वहाँ पे एडवांटेज टूरिज्म भी सर बहुत कुछ है, लेकिन फॉरेनर के लिए क्योंकि वहाँ के बॉर्डर का इलाका है तो थोड़ा ये भी दिक्कत रहती है कि भूज जो है वहाँ से परमिशन लेके 150, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो अगर जहाँ जहाँ जो मतलब स्पॉट है वहीं पे उनको परमिशन मिल जाए तो थोड़ा इजी हो जाए. So thank you very much for joining us this morning, Minister. Thank you very much. It's very good to have a minister who's passionate. When he speaks, the good thing, and I'm sure most of you sitting here would agree, that you can see that there is a genuine passion to try and make things better. It's difficult because lots of things are not in his direct control, but at least he's steering it in the direction of making things possible. So coming here and sharing your thoughts, thank you very much, Minister Gajendra Shekhawat. Thank you, Rahul. Thank you, Ajit ji. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, and a big round of applause for all of you. Thank you.